Hello everyone, this is the third part of our enzymes topic. In this video, we'll be studying about allosteric enzymes, some isoenzymes and inhibitors. So let us begin with allosteric enzymes. Some enzymes may have two functionally different binding site. कुछ enzymes में दो functionally different binding site होती हैं. One of them is active site जो कि हर enzyme में present होती है, and the other one is known as regulatory site or allosteric site. So one site is the active site which binds the substrate and catalyzes the reaction. Whereas the other type of site is the allosteric site और regulatory site जो bind करती है कुछ effector या modulator के साथ. That means वो bind करती है कुछ other molecules के साथ other than the substrate. Such enzymes are known as allosteric enzyme. These enzymes are oligomeric in nature. Oligomeric in nature का मतलब होता है that they are made up of more than one subunit. कुछ enzyme 2 subunit से बने होते हैं, कुछ 7 से, कुछ 17 subunit से. तो these are oligomeric in nature. The active site and allosteric site may be located on the same subunit क्योंकि ये different subunit से बने हुए हैं. So there are possibilities that both the sites are present on the same subunit or sometimes both the sites are present on two different subunits. बट द मेन पर्पस इज़ द कॉन्फर्मेशनल चेंज. एक सब्सटेंस के बाइंड करने से जो दूसरी साइड में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम. इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइड पे या जिसको हम रेगुलेटरी साइड बोलते हैं. इफेक्टर मॉलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्टर्स और नेगेटिव इफेक्टर्स. पॉजिटिव इफेक्टर्स जो होते हैं वो इन्हांस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को. दैट मीन्स वो ऐसे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाएंगे जिससे सबस्ट्रेट ईजिली और रेडिली बाइंड कर सके एक्टिव साइट पे. वेयर एज नेगेटिव इफेक्टर्स जो होंगे वो इनहिबिट करेंगे एंजाइम एक्टिविटी को. तो वो ऐसे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस या ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना कर सके. So binding of effector causes conformational changes in the allosteric enzyme which influence their catalytic activity. So this diagram shows the working of positive and negative effectors. अगर हम बात करें ये this is the active enzyme and this is the allosteric side मतलब कि regulatory side. So यहाँ पे अगर इनहिबिटर है, अगर नेगेटिव अफेक्टर इसके साथ बाइंड होगा, यहाँ पे नेगेटिव अफेक्टर को अगर आप बाइंड होकर देखोगे तो आप देखोगे कि जो एक्टिव साइट है वहाँ पे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से नाउ द सबस्ट्रेट इज कैन नो लॉन्गर बाइंड विद द एक्टिव साइट ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस. सो दिस इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव अफेक्टर. वेयर एज अगर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है या फिर पॉजिटिव अफेक्टर है तो जब वो एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा, पहले कैटालिटिक साइट ऐसी थी मतलब कि मेन एक्टिव साइट ऐसी थी. आफ्टर बाइंडिंग ऑफ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एक्टिव साइट विच विल नाउ enable the substrate to fit in the active site and perform the reaction. So binding of substrate to one active site may influence subsequent bindings of other active site of an enzyme with more than one active sites. The behavior of enzyme is known as cooperativity. तो अगर एक सबस्ट्रेट के बाइंड करने से, चाहे वो एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट ही हो, अगर एक सबस्ट्रेट के बाइंड करने से दूसरे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग इन्हांस होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी. When binding of first substrate molecule promotes the binding of the second molecule, that is positive cooperativity. Whereas अगर first substrate binding की वजह से second substrate की binding को effect हो और वो bind ना कर सके, that is known as negative cooperativity. Allosteric enzymes, an enzyme that show cooperativity, do not obey Michaelis-Menten kinetics. ये Michaelis-Menten kinetics को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि हम बेसिकली उन्हीं एंजाइम्स के लिए वो पढ़ रहे हैं जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि ओलिगोमेरिक इन नेचर नहीं है. सच एंजाइम शोज अ सिग्मोइडल कर्व. इनका जो अगर हमने जब माइकलिस-मेंटन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रिएक्शन वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. बट यहाँ पे जो कर्व है वो हमें सिग्मोइडल कर्व मिल रहा है. हियर द कर्व इज अ सिग्मोइडल कर्व. Such enzyme shows a sigmoidal curve when reaction velocity is plotted against substrate concentration. Many allosteric enzymes function at the beginning of metabolic sequence pathway and are inhibited whenever the end product of the reaction pathway accumulates. आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी. बेसिकली हम इसको बायो में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म. अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है और प्रोडक्ट की जितनी सफिशिएंट हमें अमाउंट चाहिए था उतना फॉर्म हो गया, अगर प्रोडक्ट एक्सेस में बनने लग जाएगा तो दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ विल इनहिबिट द रिएक्शन. तो यहीं पे वो फीडबैक मैकेनिज्म है. अगर वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो वही इनहिबिटर की तरह काम करेगा और फीडबैक मैकेनिज्म को
परफॉर्म करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो काफ़ी सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ते थे, ये एग्जैक्टली आइसोमर्स नहीं है, बट आइसोमर्स से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सेवरल एंजाइम एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स टर्म्ड एज आइसोएंजाइम्स या फिर isozymes. These isoenzymes are not isomers. You should remember this thing कि ये isomers नहीं होते. All isoenzyme forms of a given enzyme catalyze the same reaction but chemically distinct molecules. आइसोमर्स होते थे जिनमें सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, लेकिन आइसो एंजाइम्स में वो फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो वेरी करते हैं। दे मे डिफर इन अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन। इनका अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, चार्ज या मॉलिक्यूलर वेट अलग हो सकता है। दे यूजुअली डिफर इन वन और मोर काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। इनका माइकलिस कांस्टेंट या रिएक्शन वेलोसिटी अलग हो सकती है, या मैक्सिमम वेलोसिटी अलग हो सकती है। सो आइसोएंजाइम्स आर फाउंड इन ऑल वर्टेब्रेट्स। ये सारे वर्टेब्रेट्स, इंसेक्ट, प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। द मेन एग्जाम्पल, जो सबसे चीफ एग्जाम्पल है आइसोएंजाइम का, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। सो आइसोएंजाइम्स में दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, दैट मीन दोज एंजाइम विच एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ इसका एग्जाम्पल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि डिफरेंट 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। M4, बेसिकली ये 4 सब यूनिट से बना हुआ है। सो देयर आर 5 टाइप्स। इट कैन बी M4, M3H मतलब 3 M है और 1 H है, M2H2 दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ M एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H, MH3 मतलब कि 1 molecule of M and 3 molecules of H, and H4 that means there is no molecule of M and only 4 subunits of H. Each of these isoenzyme is a tetramer, that means 4 polypeptide subunits से बना हुआ है. These subunits are of 2 types and occur in different combinations in the isozymes. These two type of subunits are named M and H type depending upon their location. तो बेसिकली मसल्स में जितने जो उनसे सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं उनको हम M से रेफर करते हैं, और हार्ट में जो उनसे प्रेजेंट होते हैं उनको हम H से रेफर करते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आइसोजाइम है CPK, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, दैट इज वो भी डिफरेंट फॉर्म में CPK MB, CPK MM, CPK BB, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। But for now that is not in the course, so need not to do that example, but yes, you should remember lactate dehydrogenase. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोकना, इनहिबिट करना। तो इनहिबिटर्स वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। सो एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड इनहिबिटर्स। दीज इनहिबिटर्स कैन बी सम ड्रग्स कंसिडर्ड टू बी यूजफुल इन मेडिसिन फंक्शन बाय इनहिबिटिंग सर्टेन एंजाइम्स. For example, the inhibition of bacterial enzyme which affect the bacterial metabolism and therefore their growth and multiplication. ये इनहिबिटर, जैसे अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इनहिबिटर ड्रग्स जो होते हैं वो इनहिबिशन के लिए डाले जाते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब के अगेंस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके मेन फंक्शन को, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सके। इनहिबिटर एक्शन कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो बेसिकली यहाँ पे 2 क्लासेस ऑफ इनहिबिटर्स हैं, फर्स्ट रिवर्सिबल एंड सेकेंड इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो कॉम्पिटेटिव भी होते हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? जो वापस रिस्टोर ना करा जा सके। अगर एक बार एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, अगर एक बार एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया, तो हम वापस उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। सो दीज इनहिबिटर्स बाइंड कोवलेंटली। ये जो होते हैं वो एंजाइम के साथ कोवलेंट बाउंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये वापस रिस्टोर नहीं हो सकता। Binds to the enzyme causing the permanent loss of catalytic activity by altering or destroying a functional group on the enzyme molecule. इसके examples हैं arsenic, lead, mercury and various insecticides. On the other hand, reversible inhibitors. Reversible inhibitors मतलब कि ये एंजाइम के साथ बाउंड करते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू रिएक्शंस या हम कुछ ना कुछ तरीके करके इसको वापस इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ताकि एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को अगेन परफॉर्म कर सके। सो दीज इनहिबिटर्स बाइंड नॉन कोवलेंटली। ये कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करते एंजाइम के साथ, and their effect can be reversed. Important information on the structure of the active site of various enzymes can be obtained with the help of reversible inhibitors. तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है किसी के साथ compete करना, किसी के साथ रेस करना। तो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो compete कर रहे होते हैं सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ।
अगर किसी एक सोल्यूशन में या किसी एक किसी एक रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं और इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट हैं, तो इट डिपेंड्स। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बना लेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर सबस्ट्रेट कम है एंड देयर आर मोर ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट, तो इनहिबिटर्स एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर लेंगे या एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर लेंगे और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देंगे। So competitive inhibitors compete with the real substrate for binding to the active site of the enzyme because they resemble the substrate molecules. The catalytic ability of the enzyme is not affected by this binding, but the ability of the substrate to bind an enzyme is reduced. तो यहाँ पे इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, अगर कोई जो इनहिबिटर है वो बाइंड करता था तो वो एंजाइम को मे बी स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसकी वजह से एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो थी वो हिंडर हो रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो रही। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ये सिर्फ एक्टिव साइट को चेंज कर रहा है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना कर सके। However, these inhibitors cannot be transformed into product. ये इनहिबिटर सिर्फ इनहिबिशन का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने से रोक रहे हैं, ये सिर्फ रिएक्शन को पॉज कर रहे हैं। इनहिबिटर प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे, ना ही वो कोई और दूसरा रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी रिवर्स दिस, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट होंगे तो वो ईजिली इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब है कि ये किसी के साथ compete नहीं कर रहे हैं, बट ये से इनहिबिट कर रहे हैं। सो दी यू शुड रिमेंबर कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव है प्लस ये रिवर्सिबल है। सो दीज इनहिबिटर्स बाइंड एट अ साइट ऑन द एंजाइम अदर देन द कैटालिटिक साइट। जो हमने अभी नेगेटिव इफेक्टर्स के बारे में पढ़ा था एलोस्टेरिक एंजाइम्स में, हम यहाँ पे वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई ऐसा इनहिबिटर बाइंड कर जाए कि उसकी वजह से एंजाइम में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, सो दोज आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Substrate binding site altering the conformation of the enzyme molecule leading to the distortion or inactivation of the catalytic site. So क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, तो ये इजीली रिवर्स करे जा सकते हैं। बट क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव है तो ये सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं कर रहे। दैट मीन्स सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से इनकी बाइंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दीज इनहिबिटर्स बेसिकली बाइंड एट अ साइट, कैटालिटिक साइट के अलावा किसी साइट पे बाइंड करते हैं लाइक एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट पे। उसके बाद ये एंजाइम को डिस्टॉर्ट या मतलब ये कैटालिटिक साइट को, एक्टिव साइट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड रिवर्सिबली टू बोथ द फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकते हैं प्लस ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट विल नॉट रिस्टोर द प्रीवियस रेट ऑफ reaction. So this was about inhibitors, and with this we end with the chapter enzymes. I hope you find it useful. If you have any queries, you may leave the comment in the comment box, or you may drop a mail. Thank you for watching the video. Hope you find it useful.